The 6th century BC witnessed a transition to a new historical scene in North India with the establishment of kingdom, oligarchy and chiefdom and the emergence of towns elucidate. So this is again a connected theme जो पीछे conclusion किया लगभग वही question बन गया. So here if we see the question, it talks about two themes. Number one is the political history of 6th century BC and second is the economic history, which is the urbanization phase or the second urbanization. And here the keyword that we have is elucidate. So it means it becomes a very straightforward question. There is nothing specific analytical which has been asked. Just write an introduction, focus on the keywords, end of story. If you can draw a map, that would be something very wonderful, because in map you can mention both things, right? You can mention the specifics Mahajanpada as well as the capital cities. So that will give a very good perspective to the checker. So if I see the introduction, 6th century we have the period of political emergence of private property, domination of state under king and establishment of Mahamata from Mahamata as mentioned in Anguttara Nikaya. So similar kind of introduction has been done, right? So relatively all right. This is good. ठीक ठाक लेवल का मैप है और उसको बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है एरियाज को आइडेंटिफाई करके. तो मैपिंग अगर आपका स्ट्रांग है, कैन यू सी इट, इफ योर मैपिंग पार्ट इज स्ट्रांग then only you can afford to do this. If it is weak तो यहाँ भी सफ़र करोगे. That's why make sure मैपिंग अच्छे से होनी चाहिए, एक जगह नोट्स होने चाहिए ताकि उसको कभी भी यूटिलाइज कर सके. And this is a very good way of writing answer. In the establishment of kingdom they have mentioned about the specific ruler like Pradevta of Avanti, Prasenjit of Kaushal, Bimbisar of Magad. So this is how establishment of kingdom etc. has been mentioned by the topper. What other factors were responsible for the rise of this kingdom? Rise of trade and commerce, which ensured sufficient resources for the stability of state. Okay, so economic prosperity के बारे में mention किया है, which became the important trade center, trade routes Uttarapatha and Dakshinapatha, they can be further mentioned here. Constant conflict kept on happening, changing boundaries. Then talking about oligarchies and chiefdom. So there were various famous oligarchies of these times, Vajji Confederacy and Malla Mahajanpada are the more famous one. The lesser, smaller one like the Sakya Republic, to which the Buddha or the Siddhartha belonged to, and how they used to be in this Santaghar where they used to debate and discuss before taking any final decision. Okay, here you can even mention about the historian perspectives. If we see the historian perspective, R.G. Bhandarkar, they mention that they were republics, while on the other side, the word oligarchy has been used by Upinder Singh. So exactly historiography को भी थोड़ा include कर सकते हो, वो थोड़ा सा यहाँ पे missing लगा मुझे. तो हिस्टोग्राफी को प्लीज थोड़ा सा मेंशन करेंगे. टाउन इमर्जेंस, सो यस दिस इज द फेज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन. ओके, अगेन सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर केम, द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बिकम प्रोमिनेंट. ओके, सो हियर दे हैव मेंशन्ड अबाउट द राइज ऑफ फेमस सिटीज, उत्तरपथा, दक्षिणपथा एक्सेट्रा, स्ट्रगल ऑफ पावर एंड विच इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ द Mauryan Empire, which became one of the largest empire by the time of Chandragupta. Okay, so this is how this question in itself was a very straightforward. In exam also, you'll see at least 20-30% of the question will be very straightforward. Only detail would be required. अर्बनाइजेशन वाले में यहाँ पे आप डिबेट पाथ ओपन कर सकते हो सिर्फ एक पॉइंट लिखने के लिए. द रोल ऑफ आयरन रिमेन कंटेस्टेड. Marxist historians like D.D. Kosambi etc. gave a lot of prominence to this, but this has been countered by Nihar Ranjan Ray and Amalnanda Ghosh, who considered that this was not the initiator of urbanization, but this must have helped in the sustenance. तो जहाँ भी जो टॉपिक आ रहा है ना, उसकी हिस्टोरिकल डिबेट को वहाँ पे एक पॉइंट में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. बट कई बार क्या होता है कि आप पूरी डिबेट लिखने बैठ जाते हो कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने वो कहा. वो रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन, बिकॉज डिबेट डायरेक्टली पूछ ही नहीं गई है. ठीक है, दिस इज हाउ इनकॉर्पोरेशन जब हम बिल्कुल इसकी तरह हिसाब से करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे. So please remember this. Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I am here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं. एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, then you can join our institute. चलिए बात करते हैं. So the program will start from 23rd of July.
इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, ओके, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. इन 2018 आई वाज एबल टू गेट 324 मार्क्स एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ टॉपर्स. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 एज वेल एज 22, एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग अराउंड 300 और मोर देन 300 मार्क्स. उसके आसपास आ ही जाता है. इनफैक्ट टॉपर ऑफ 2023 शी ऑल्सो गॉट मोर देन 300 मार्क्स. सो इट्स ए स्पेसिफिक ऑप्शनल वेर यू गेट गुड मार्क्स. प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क्स. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. विथ रिस्पेक्ट टू आवर क्लासेस, ओके, इफ़ यू सी आवर मेथोडोलॉजी इज़ अ बिट यूनिक. व्हाट डू वी फोकस अपॉन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव सम स्पेसिफिक क्लासेस विच आर कंसेप्ट ओरिएंटेड, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगिनिंग. तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे. Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional, and जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे. And side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे. आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में. कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है. इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स UPSC में भी आ जाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया. एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू get maximum marks in the interview, all those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस हो जाते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो जाते हैं क्लास के अंदर. एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल. क्यों? बिकॉज देखो कभी होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे. तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. सो दैट हूएवर जॉइन्स दिस, उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. तो दिस इज़ अबाउट द क्वान्टिटेटिव. देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के. देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे. इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक. 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे. 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वॉज फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज. सो इफ़ वी स्टडी वेल, इफ़ वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड. एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल. मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथोडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, you can get very quick result. But yes, you have to be dedicated from your side. So if you are somebody with energy, somebody with dedication, become a part of this. 23rd जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 मार्क्स हियर. You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं in ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट.